Greetings to one and all. Welcome to my channel English Talks with Dr. Sumit Kumari Daya. So now we are doing the poem Another Woman written by Imtiaz Dharkar. We will do about the poet explanation and the poetic devices used in this poem. Imtiaz Dharkar is a versatile poet born in Pakistan and brought up in Scotland. She is listed among the famous Indian poets such as Kamla Das, Sujata Bhatt, and Tara Patel. She is not only a poet but also a painter and an accomplished documentary filmmaker. Her works include Parda, Postcards from God, and I Speak for the Devil, The Terrorist, At My Table, and Leaving Fingerprints. तो इम्तियाज़ धारकर एक वर्साटाइल पोइट हैं और इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और इनका जो लालन पालन है वो स्कॉटलैंड में हुआ था और फेमस इंडियन पोइट्स की लिस्ट में ही ये की तरह ही ये आती हैं, जैसे कि कमला दास, सुजाता भट्ट, तारा पटेल। ये सिर्फ पोइट ही नहीं हैं, पेंटर भी हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं और इनके बहुत सारे जो वर्क्स हैं वो बहुत ही फेमस हैं और वर्थ रीडिंग हैं। तो चलिए अब करते हैं समरी ऑफ द पोएम अनदर वुमन रिटन बाय इम्तियाज धारकर। द पोएम begins with the scene in the vegetable market. The protagonist is the woman in the poem. She started her routine course with buying vegetables from the market. There she bought green methi, selecting one of the freshest bunch from the collection. Thought of buying a white radish, she imagined its crunch sound as if she bit it with her teeth. She could feel its sharp taste, but thinking it as an unnecessary expenditure, as she brought her husband's earned money, she put it aside. She counted her remaining coins carefully and tied them to the loose end of her sari and placed it on her waist. जो पोएम है ये इस सीन से बिगिन होती है कि वेजिटेबल मार्केट का सीन है। जो प्रोटैगोनिस्ट है, मतलब कि जो हीरोइन ऑफ द पोएम है, जो वुमेन है इस पोएम में, वो अपना रूटीन कोर करके और वेजिटेबल्स ख़रीदने के लिए मार्केट जाती है। वहाँ पर वो ग्रीन मेथी जो है वो ख़रीदती है और कलेक्शन में से फ्रेशेस्ट बंच वो चूज़ करती है और वो चाहती है कि वो वाइट रेडिश भी ख़रीदे, मूली ख़रीदे और उसको खाने का मन बड़ा है उसको कि एक बाइट तो वो उसकी ले ही ले। वो मन मन में जो है इमेजिन करती है कि कैसे क्रंचिंग साउंड आती है जब मूली खाते हैं और उसका जो सॉर टेस्ट है, जो शार्प टेस्ट होता है मूली का, वो भी वो फील करती है। लेकिन उसको लगता है कि ये एक बिना बात का ही खर्चा हो जाएगा क्योंकि उसने जो है अपने हस्बैंड की कमाई हुई मनी वो लेके आई हुई है और वो जो है उसको फिर रख देती है साइड में क्योंकि वो उसको नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वो अपने रिमेनिंग जो बचे हुए कॉइन्स हैं उनको बहुत ध्यान से गिनती है और उनको जो है अपने साड़ी के पल्लू से, जो कि लूज एंड की तरफ पल्लू होता है, उसमें बांध लेती है और उसको जो है अपनी वेस्ट, मतलब कि अपनी कमर के वहाँ पर रख लेती है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एक बहुत ही मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करती है इस पोएम की जो प्रोटैगोनिस्ट है और वो चाह कर भी जो है बेसिक नीड की चीज़ नहीं खरीद सकती है। शी रिटर्न्ड होम एंड फेस्ड हर मदर इन लॉज एंग्री लुक्स. She took out the methi leaves which she had just bought and chopped them. Her hands get stained with yellow color from the juice of the leaves. She cut the onion and cooked everything in the pot, placing it over the stove. She protected herself face from the heat coming from the stove. As usually, her mother-in-law started cursing her about the spent money, and those words hurt her as if they bet her. She also scolded her parents for sending her to spread darkness in their lives. She bent down to the floor beside the stove. Though her husband came home, she not even looked at him. She even bent her back little more. She had no rights to speak against the injustice towards her. She looked at the stove. The flames rose up, hitting the black pot. वो घर पर वापस आती है और वहाँ पर देखती है कि जो उसकी सास है वो बहुत ही गुस्सा है। वो क्या करती है कि वो मेथी लीव्स को निकालने लग जाती है, उनको चॉप करने लग जाती है, तो उसके हाथ जो है वो पीले हो जाते हैं मेथी के जूस से। और वो अनियन भी जो है वो काटती है और उसको पोट में डाल के स्टोव पर पकाती है और वो अपने आप को बचाती है, अपने फेस को स्पेशली, क्योंकि जो उस चूल्हे में से बहुत ज़्यादा हीट आ रही थी। और एज़ यूजुअली उसकी मदर इन लॉ जो है वो उसको गालियाँ निकालना शुरू कर देती है कि उसने जो है पैसे ख़राब कर दिए हैं और जो है वो वर्ड्स उसको ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो उसको पीट ही रहे हों।
और वो साथ में उसके पेरेंट्स को भी जो है डांटती है, गालियाँ निकालती है कि इसको भेजकर जो है हमारे घर में इसने जो है हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा कर दिया है। और वो जो है फ्लोर पर जो स्टोव के बिसाइड होता है वहाँ पर बैंड डाउन बिल्कुल झुक कर बैठ जाती है। हालांकि उसका हस्बैंड भी आता है लेकिन वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है, और वो और भी जो है मुड़ जाती है बैठे बैठे, क्योंकि उसको वहाँ पर बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं है इनजस्टिस के ख़िलाफ़ बोलने का। और वो स्टोव पर जो देखती है कि जो उसकी फ्लेम्स हैं, जो लपटें हैं, वो और भी ज़्यादा ब्लैक पोट के ऊपर से जा रही हैं। Above all, when her husband arrives home, she can never share her woes, rather should listen what he demands. Her rights are confiscated for a lifetime. She feels like the heat of the flame is engulfing her. She feels tied up with insult and torture by her own family members. She tries to kill herself with kerosene as it will be considered another torch blazed in the dark, and that's what every another woman doing in her life. तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसका हस्बैंड घर आता है तो वो कभी भी अपने दुख जो है उसके साथ शेयर नहीं कर सकती है, बल्कि उसको जो है यही सुनना होता है कि उसके हस्बैंड की क्या डिमांड्स हैं। उसके जो राइट्स हैं वो तो लाइफ टाइम के लिए कॉन्फिस्केटेड कर दिए गए हैं, और ऐसे लगता है कि जो हीट ऑफ फ्लेम है वो उसको निगल ही जाएगी बिल्कुल। मतलब कि जो लपटों की गर्मी है जैसे कि वो उसको निगल ही जाएगी वो, और वो बिल्कुल ऐसा लगता है उसको जैसे कि उसको टाइड अप कर दिया गया है इंसल्ट के साथ। मतलब कि जो बेइज्जती है वो उसके साथ उसको बांध दिया गया है, और टॉर्चर के साथ भी उसको बांध दिया गया है। और ये उसकी फैमिली के मेंबर्स ही थे, उसके इन लॉज ही थे जो उसको हर टाइम इंसल्ट करते रहते हैं। और ऐसा लगता है कि वो जैसे कोशिश करती है कि वो अपने आप को कैरोसिन के साथ जो है वो जला ले, और एक और अनदर टॉर्च जो है लाइट की वो ब्लेज हो जाए, चमक जाए डार्कनेस में। और यही है कि हर अनदर वुमन जो है, एक दूसरी औरत जो है वो यही अपने लाइफ में कर रही है। It looked as the bright flames were hitting the cheeks of the pot, as if they were giving hints to her to burn herself. She felt bad of her situation. Her life looked at her as a constant struggle. She thought of the house where she was sent to spend her life, the kind of a person whom she had been married to live with, who never had a concern for her. So she decided to end up her life to escape from her miserable life, as she thought this is the only choice left to her. She poured kerosene on herself and burned to ashes. Within a moment, there came a bright spark. Another woman, who is believed to be a torch letting a light in a family, has ended up burning in the darkness. Still, we have no concern for such brutalities. We just protect and shield our faces in comfort. ऐसा लग रहा था कि जो ब्राइट, जो बहुत तेज़ लपटें हैं वो उसकी गालों को जो है छू रही हैं, और साथ में पोट से जो है वो निकल कर आ रही हैं, जैसे कि पोट के जो बर्तन के गालों को भी छू रही हैं, और इससे उसको हिंट मिलता है कि मैं भी क्यों ना खुद को जला ही लूँ। वो जो है अपनी सिचुएशन को लेके बहुत ही बुरा फील करती है। उसको लगता है कि जैसे जो उसकी लाइफ है वो एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, उसको संघर्ष करना पड़ेगा लगातार। और वो सोचती है कि उसको जो है किस घर में भेज दिया गया है जहाँ उसको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, और किस तरीके का इंसान है जिसके साथ उसकी शादी कर दी गई है, और उसको कभी भी उसके लिए कभी भी कंसर्न नहीं होती है, कभी भी उसकी चिंता नहीं होती, ना वो उसकी देखभाल करता है। तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने जीवन को जो है ख़त्म कर लेगी, और ये जो दयनीय स्थिति है, उसका जो दयनीय जीवन है, इससे उसको एस्केप मिल जाएगा। जैसे ही वो ये सोचती है कि उसको ये लगता है कि यही एक चॉइस है उसके लिए, और इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो वो अपने ऊपर जो है कैरोसिन ऑयल पोर कर लेती है, अपने ऊपर उड़ेल लेती है कैरोसिन को, और जो है राख में कन्वर्ट हो जाती है अपने आप को जलाकर। और एक ही क्षण में जो है बहुत ज़्यादा चमकदार जो है स्पार्क्स वो निकलती हैं। तो एक अनदर वुमेन है जिसको जो है ऐसा मान लिया गया है कि भाई उसने जो है खुद को जला लिया है, और वो एक टॉर्च ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो गई, और उसने जो है अपने आप को ख़त्म कर लिया, अपने आप को जलाकर, और उस डार्कनेस से वो निकल गई। और आज भी हमें लगता है कि जैसे इन ब्रूटैलिटीज़ से, हालांकि आज के दिन तो बहुत कमी आ गई है, लेकिन जिस समय ये पोएम लिखी गई थी तो उस टाइम जो है ब्राइट बर्निंग के केसेस बहुत ज़्यादा होते थे। तो वहाँ पर जो पोइटस है वो कहती हैं कि इन ब्रूटैलिटीज़ से ऐसे लगता था कि जैसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आए दिन ये चीज़ें होती जा रही थी, तो हम तो सिर्फ जो है कंफर्टेबली अपने फेसेस को ही जो है शील्ड करते रहते हैं आग की लपटों से, और ख़ुद को जलाना एक बहुत बड़ी सज़ा होती है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में आके ऐसा स्टेप वो उठाती है। The poem explains how a woman starts her day with daily household chores,
Her work was no limitations, but perfection is always expected out of her. She makes sure to select the best vegetables from the market. Her purchasing should be within budget. After all days' toil, she could not satisfy her mother in law. She heads towards the kitchen to accomplish her pending cooking work, like cutting onion, chopping leaves, and preparing food. She prepares the food with much effort and bears the extreme heat of the stove. While cooking, bad words and torture from her own family members make her feel miserable. तो इस पोएम में यही बताया गया है कि कैसे एक औरत जो है पूरा दिन अपने घर के काम करती है और उसके काम की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। हर समय उससे परफेक्शन एक्सपेक्ट की जाती है और उसको लगता है कि वो बहुत छाँट कर सब्जियाँ लाएगी, बजट के अंदर ही चीज़ें करेगी। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वो अपनी मदर इन लॉ को जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। किचन की तरफ जाती है, जो उसका पेंडिंग वर्क होता है कुकिंग का वो करती है। वो सब्जियां काटती हैं, खाना बनाती है, लेकिन वो जो है खाना बनाते बनाते उसकी मदर इन लॉ उसके लिए बहुत ज़्यादा बैड वर्ड्स निकालती रहती है, जिससे उसको बहुत ही बुरा लगता है। उसकी हालत बहुत मिजरेबल हो जाती है। दिस मॉर्निंग शी बॉट ग्रीन मेथी इन द मार्केट, चूजिंग द फ्रेशेस्ट बंच, picked up a white radish, imagined the crunch it would make between the teeth. The sweet, sharp taste then put aside, thinking it an extravagance, counted her coins out carefully, tied them a small bundle into her sari at the waist. तो इस सुबह वो जो है ग्रीन मेथी खरीदती है बाज़ार से और उसमें से बहुत ही सब्जियों में से फ्रेश सबसे ताज़ा बंच जो है गुच्छा निकालती है। एक वाइट रेडिश भी उठाती है और इमेजिन करती है कि जब उसको खाते हैं तो कैसे क्रंचिंग साउंड आती है, जैसे कि वो उसके दांतों के बीच में ही हो। और उसको स्वीट शार्प टेस्ट भी फील होता है मूली का, और लेकिन वो उसको साइड में रख देती है। वो उसको क्यों नहीं ले पाती एक मूली को भी, क्योंकि वो सोचती है थिंकिंग इट एन एक्स्ट्रावेगेंस की फिजूल खर्ची हो जाएगी। वो अपने पैसे गिनती है, सिक्के गिनती है बहुत केयरफुली और उनको बांध लेती है एक स्मॉल बंडल को अपनी साड़ी में और उसको फिर अपनी वेस्ट में जो है अपनी कमर में उसको बांध लेती है। केम होम, फेस्ड हर मदर इन लॉज डार्क लुक्स, टुक द लीव्स एंड चॉप्ड दैम, her hands stained yellow from the juice, cut an onion fine and cooked the whole thing in the pot. Salt and cumin seeds thrown in over the stove, shielding her face from the heat. तो वो घर आती है और वहाँ पर देखती है कि उसकी सास जो है वो बैठी हुई है और बड़े गुस्से में है। फिर वो क्या करती है कि मेथी की जो बंच है उसको निकालती है, पत्तियाँ साफ़ करती है और उनको काटती है और उसके हाथ जो है वो येलो हो जाते हैं मेथी के जूस से। फिर वो एक प्याज काटती है बहुत फाइनली और उन सब चीज़ों को जो है पोट में डाल के जो है कुक करने लग जाती है एक बर्तन में डाल के, और साथ में सॉल्ट और ज़ीरा जो है वो डालती है वो उसमें और उसको चूल्हे पर चढ़ा देती है, शील्डिंग हर फेस फ्रॉम द हीट। और साथ में ही वो अपने फेस को जो है हीट से, जो स्टोव की हीट है, गर्मी है, उससे अपने फेस को बचाती है। सो दिस इज़ द टेक्स्ट वी आर डूइंग नाउ। देन the usual words came and beat their wings against her. The money spent, curses heaped upon her parents, when had sent her out to darken other people's doors. She crouched as usual on the floor beside the stove. When the man came home, she did not look into his face, nor raise her head, but bent her back a little more. Nothing gave her the right to speak. तो उसके लिए जो है वही यूजुअल वर्ड्स, गालियाँ आती हैं और वो जो है उसकी सास उसके लिए बुरे बुरे वर्ड्स निकालने लग जाती है कि उसने पैसे जो है ख़राब कर दिए, और उसके पेरेंट्स के लिए भी बहुत बददुआएं निकालने लग जाती है कि उन्होंने जो है उसको हमारे घर में भेज दिया और दूसरे लोगों के जीवन में जो है इसने अंधियारा कर दिया है, डार्कनेस कर दी है। तो वो जो है नीचे फर्श पर बैठ जाती है जैसे हमेशा ही बैठती है और स्टोव के बिसाइड बैठ जाती है। तभी उसका पति घर पर आता है और वो उसकी तरफ नहीं देखती है और ना ही वो अपना सिर उठाकर देखती है, लेकिन अपनी बैक को और भी ज़्यादा सिकोड़ के और भी ज़्यादा मुड़कर वो बैठ जाती है, क्योंकि उसको जो है कोई भी राइट नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है कुछ भी बोलने का। तो आइए चलिए देखते हैं आगे और टेक्स्ट। शी वॉच्ड द फ्लेम हिस अप and beat against the cheap old pot, a wing of brightness against its blackened cheek. This was the house she had been sent to, the man she had been bound to, the future she had been born into. So when the kerosene was thrown, just a moment of surprise, a brilliant spark.
It was the only choice that she had ever known. Another torch blazing in the dark. Another woman. We shield our faces from the heat. तो वो देखती है कि जो लपटें हैं आग की वो बहुत ऊपर तक आ रही हैं पोट के, हिसब कर रही हैं, और जैसे ऐसे लग रहा है कि चीप ओल्ड जो वो पोट है बर्तन उसको आकर जो है वो चूम रही हैं, और बहुत ज़्यादा आग से ब्राइटनेस भी हो रही है, और जो बर्तन काला पड़ गया है चूल्हे पे रखने की वजह से ऐसे लग रहा है कि वो उसकी चीख पर आकर जो है आग की लपटें किस कर रही हैं। तो वो सोचती है कि यही वो घर था जिसमें उसको भेज दिया गया था, और ये वो आदमी है जिसके साथ इसको रहना पड़ेगा, और उसको लगता है कि मेरा ऐसा ही फ्यूचर है। वो बहुत ही मिजरेबल फील करती है यहाँ पर। और सो व्हेन द केरोसिन वॉज थ्रोन, ऐसा लगता है कि वो यहाँ बैठे बैठे ये सोच लेती है कि उसको कोई आइडिया आ जाता है उन फ्लेम्स को देख के, तो जो केरोसिन है उसको वो अपने ऊपर डाल लेती है, और एकदम से सब मोमेंट ऑफ सरप्राइज़ था वो, एकदम से बहुत आग आती है क्योंकि केरोसिन डालने से ही आग उसको पकड़ लेती है, और यही उसके पास एक चॉइस थी। तो यहाँ पर जो है इम्तियाज़ धारकर कहती हैं कि उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी, उसके पास सिर्फ यही चॉइस थी कि वो अपना जीवन ख़त्म कर ले। तो उसने ऊपर जो केरोसिन डाला और आग उसको पकड़ लेती है। अनदर टॉर्च, तो एक तो चूल्हे में आग जल रही थी, और एक उसने जो अपने ऊपर डाला उससे जो है आग जल गई और भी बहुत ज़्यादा, और डार्कनेस में जो है वो बहुत ज़्यादा आग फैल गई एकदम से। अनदर वुमेन, तो ये एक वो वैसी ही एक अनदर वुमेन थी जैसे कि और औरतों के साथ होता जा रहा था, क्योंकि ये पोएम जब लिखी गई तो उस टाइम ब्राइट बर्निंग के केसेस बहुत ज़्यादा होते थे। वी शील्ड आर फेसेस फ्रॉम द हीट, और जबकि हम अपने फेसेस को हीट से बहुत बचाते हैं, थोड़ा सा भी अगर आग में हमारा हाथ जल जाए तो सोच के देखिए कितना दर्द होता है। और यहाँ पर जो अनदर वुमन है उसने जो है अपना जीवन ही ख़त्म कर लिया है, उसने खुद को जला लिया है। तो चलिए देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड। अ विंग ऑफ ब्राइटनेस अगेंस्ट इट्स ब्लैक एंड चीक, यहाँ पर ब्राइटनेस जो है उसको पर्सोनीफाई कर दिया गया है। बाई यूजिंग विंग, पोर्ट इज़ पर्सोनीफाइड, पोर्ट को भी पर्सोनीफाइड कर दिया है बाई यूजिंग ब्लैक एंड। तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स है। ब्राइटनेस एंड पोर्ट इज़ personified by using black end, and brightness is personified by using wing. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, सिम्बोलिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ मेटाफर, व्हाट इज़ सिम्बली, ये जो लिटरेरी या पोइटिक डिवाइसेस होते हैं इनके ऊपर मैंने बहुत सारी अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। इफ़ यू वांट टू नो दैट यू कैन सी दोज वीडियोस ऑल्सो। यूजुअल इज़ द सिंबल ऑफ द वुमेन्स फेसिंग द सफरिंग डेली। टू डार्कन इज़ द सिंबल ऑफ ब्रिंगिंग ill luck. Crouch is the symbol of modesty. Another torch is the symbol of another woman who is going to end her life. So let us recap टाइप हो जाएगा ये हमारा जिस्ट ऑफ द पोएम कर लेते हैं हम, सम अप हो जाता है एक तरीके से कि क्या निकला है इस पोएम में से। The poem depicts the pathetic life of a housewife who kills herself helplessly due to the brutality she faces. It picturizes the routine day of a poor woman. The abuses she had to face and her feelings. तो ये पोएम जो है डिपिक्ट करती है कि कितनी दयनीय जीवन होता है एक हाउसवाइफ का जो अपने आप को मार लेती है क्योंकि वो बहुत असहाय है, क्योंकि उसके साथ बहुत ब्रूटैलिटी की जाती है, मतलब बहुत ही निर्दयता की जाती है। वो एवरीडे जो फेस करती है, कोई भी जो है उसका घर में रिस्पेक्ट नहीं करता है, हर टाइम उसकी सास उसके लिए गालियाँ निकालती रहती है, वो पूरा दिन काम भी करती है, कोई उसकी हेल्प भी नहीं करता है और उसको कोई राइट भी नहीं है बोलने का। इट पिक्चराइजेज अ रूटीन डे ऑफ अ पुअर वुमेन, द अब्यूजेज शी हैड टू फेस एंड हर फीलिंग्स। तो यहाँ पर एक पिक्चराइजेशन कर दिया गया है कि एक जो पुअर वुमेन होती है उसकी क्या रूटीन डे होती है, पूरा दिन वो कितनी गालियाँ खाती है और उसकी फीलिंग्स कैसी होती हैं। Though the woman works hard for the family all the day, she is neither given any importance nor freedom to speak. हालांकि जो वो औरत है पूरा दिन बहुत ही मेहनत करती है अपनी फैमिली के लिए, लेकिन उसको ना तो कोई इम्पोर्टेंस दी जाती है, ना ही उसको कोई आज़ादी दी जाती है कि वो बोले। और इट रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटीज़ पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स वुमेन एंड वायलेंस अगेंस्ट हर। तो इस पोएम में ये दिखाया गया है कि जो सोसाइटी का जो क्या पर्सपेक्टिव है, क्या नज़रिया है हमारे समाज का एक औरत के प्रति, और उसके प्रति हिंसा का जो क्या नज़रिया है। ज़रूरी नहीं है कि मार के ही हिंसा की जाए, शाब्दिक हिंसा भी बहुत होती है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है औरत का घर में, और फुल टाइम वो बस काम ही करती रहती है, उसको कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो ये जिस्ट ऑफ द पोएम है। स्पेशली ये उस टाइम लिखी गई थी जब औरतों को जला दिया जाता था दहेज के नाम पर, या फिर उनको इतना तंग किया जाता था कि औरत खुद को ही आग लगा लेती थी क्योंकि उसके पास कोई और जो है चारा ही नहीं बचता था।
तो यहाँ पर हम बार बार में वोमेन बोल रहे हैं, WOMAN, वोमेन मतलब कि एक औरत, और WOMEN वीमेन होता है, तो उसका मतलब होता है बहुत सारी औरतें। वोमेन इज़ सिंगुलर एंड वीमेन इज़ प्लूरल। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और उसका मीनिंग भी डिफरेंट हो जाता है। वोमेन मतलब कि सिंगुलर एक औरत, वीमेन मतलब प्लूरल मतलब कि बहुत सारी औरतें।